کرم فرما ذرا نواز علماء اہل سنت اور مداحان خیر الانام، سامنے تشریف فرما سبھی وابستگان دامن غوث و خواجہ و رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صدق النبی الامی المتین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری نعمتوں پہ ناز کرتا ہوں۔ سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حیدریم قلندرم مستم کے بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں۔ مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نارائی یا غوث اعظم می زنم۔ دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ سلام پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ سلام پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر صائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے پہلے باواز بلند مل جل کر پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، اسی سے کیا ہے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد کی محبت آن ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت شان ملت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کی توجہ ایک جانب یعنی صرف اسٹیج کی جانب پاؤں تو کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوا جو آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اور جس ہستی کے انتظار میں آپ پیچھے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا، اس ہستی کا میں بھی بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں، اور جب وہ آئیں گے تو صرف آپ بھی کھڑے نہیں ہوں گے، میں بھی کھڑا ہوں گا، اس لیے کہ ہم عاشقوں کا بابا یوں فرماتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ پیچھے دیکھ دیکھ کر یہ نہ جتائیے کہ رسول کے بیٹوں کا قدر اور عزت ہم ہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا یہ خادم بھی عزتیں کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آج آپ کے سامنے بٹھایا، ورنہ اعمال کچھ نہیں،
हाँ फकत अदब वालों का दामन पकड़ा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला ने आज अहले सुन्नत वल जमात का खातिम बनाकर आपको सुनने के लिए बिठाया है, मुझे सुनाने के लिए बिठाया है। कुछ नहीं है, फकत मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है बस। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में जब रजिस्टर खोले जाएंगे ना, तो मिलादियों में जहां आपका नाम आएगा, नीचे फहरिस्त के अंदर मिलाद सुनाने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। मोहब्बत से दुरूद पाक सुना दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम दाइमन सरमदन अबदन अबदा। ईद मिलाद रसूल के सुहाने मौसम पर आप बैठे हैं और बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान रसूल पाक का शहजादा तशरीफ ला रहा है ना, जिनके जलवों को देख करके आप वाकई पुकार उठेंगे मौला 1400 साल बाद वाले गुलाम हुसैन का ये आलम है, तो 60 हिजरी में जो करबला तशरीफ लाया था उस इमाम हुसैन का क्या आलम होगा। आइए दोस्तों, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करूं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बात शुरू होती है सरवरे कौनो मकान से, बात वहीं से जिनका कलमा पढ़ा करते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, सरकार तशरीफ ले गए एक जंग में, और जिस जंग में आप तशरीफ ले जाते कदमों की बरकतों से ही अल्लाह कामयाबियां अता फरमा देता था। पलट करके वापस तशरीफ ला रहे थे, एक जगह पर क़याम किया, खैमा ताना, और खैमे में मेरे सरकार आराम करने लगे। जब इंसान सोता है तो खबर कुछ नहीं रहती, एक खादिम बाहर आपकी चौकीदारी कर रहा है, हालांकि अल्लाह ताला फरमाता इन्नका बिअयुनिना महबूब, तुम तो हर वक्त मेरी निगाहों में रहते हो। दूसरी जगह फरमाया अल्लाहु यौसिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा, मुहाफिज तुम्हारा रब्बुल आलमीन है। मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वो सहाबी खड़े हैं अपनी खुशनसीबी समझते हुए कि मैं सरकार के दरवाजे पर खड़ा रहूं, और जब सरकार के दरवाजे पर खड़े रहे तो ये वो दरवाज़ा है जहाँ से खाली कोई नहीं पलटता, मेरा अल्लाह इस दरवाजे के हर भिखारी को बेपनाह अता फरमाता है। इसीलिए आशिकों के बाबा फरमाते हैं ना, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें, गधा माने वो नहीं जो हमारे चौधरी फिरते हैं, उस गली का गधा माने फकीर, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बड़े बड़े ताजदार मेरे आका की बारगाह में भिखारी बन करके जाया करते हैं, है ना। नूरुद्दीन जंगी शहंशाह वक्त था, सलाहुद्दीन अयूबी को जिसने अपनी तरबियत से जवान किया, वो नूरुद्दीन जंगी जब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, शहंशाह वक्त अपने कपड़ों को फाड़ करके पहुंचा और जाकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं शहंशाह हूँ दुनिया भर का, मैं बादशाह हूँ जमाने भर का, लेकिन ताज उतार कर कपड़े फाड़ कर इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि ताजदार दुनिया भर का हूं, लेकिन आपके दरबार का फकीर बन करके आया। और एक और बादशाह था, बात दरमियान में आगे सुन लीजिए, एक और बादशाह था महमूद गजनवी बुत शिकन, है ना, बहुत नाम सुना होगा, और हमसे ज्यादा पराए लोग इनका नाम लिया करते हैं। और अरबी का मक़ूला है अल फद्ल मा शहीदत वहिल आदा, फजीलत तो यह है कि दुश्मन भी गवाही देता हुआ नजर आए। तो शहंशाह महमूद गजनवी जब आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, शहंशाह वक्त हैं, आका करीम की बारगाह में पहुंचे, तो मेरे सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए एक नया जुब्बा सिलवाया, नई तलवार लगाई, नया ताज पहना, ताज पर नया मोती लगाया, नया पंख लगाया, और सज धज करके सरकार की बारगाह में पहुंचे। एक था जो फकीरों की सूरत में पहुंचा, और एक था जो नया बादशाह बन करके पहुंचा, और जाकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक बकरी चराने वाले के बेटे को बादशाह बना दिया आपने, या रसूल अल्लाह। ये ताज भी आपने अता फरमाया, ये लिबास भी आपने अता फरमाया, ये खलत फाखरा भी आपने पहनाई, ये तलवार भी मेरे हमाइल कर दी। आका कुछ नहीं था, मेरा बाबा जंगलों में बकरियां चराया करता था, ये आपकी करम नवाजी है कि एक गडरिये के बेटे को शहंशाह आलम बना दिया। मेरे दोस्तों, जमाना यहीं पर आता भीख मांगने के लिए। एक मर्तबा कोई हातिम ताई का पोतों में, औलादों में, वंशजों में कोई था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी आल से मुकाबले पर लग गया। तो हातिम ताई के बेटे पोते जो भी था, उसने कहा, नस्लों में था हातिम ताई की, उसने कहा कि मेरा बाप हातिम ताई इतना सखी है
کہ جو بھی دربار پر آ جاتا ہے خالی نہیں جاتا. دربار پر جو بھی آ جاتا ہے, دروازے پر مانگنے کے لیے جو بھی آتا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. 7 دروازے ہیں حاتم طائی کے, اور 7 دروازوں سے لوگوں کو بھیک دیتا تھا, اور ایک بھکاری 7 بار بھیک لے کر جاتا تب بھی بھیک دے دیا کرتا تھا. تب رسول پاک کا بیٹا مسکرایا اور کہنے لگا, تیرے بابا کے 7 دروازے ہیں مگر میرے نانا کا تو ایک ہی دروازہ ہے. میرے نانا کا ایک ہی دروازہ ہے, اور اتنا عالی شان دروازہ ہے کہ جو ایک بار دروازے پر آ جاتا ہے اس کو کسی چوکٹ پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی, دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی, اس لیے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیمے میں آرام فرما ہے, اور وہ صحابی باہر کھڑے ہیں, اور دیکھا صحابی رسول نے کہ دور ایک کھجور کا درخت کھڑا ہے, اور وہ اچانک اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلنے لگا. آپ نے درخت کو کبھی چلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. آپ چمر سے باہر نکلے, پورے مارواڑ کا جائزہ لیں, اور اس کے بعد آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, دیکھ لیں. پوری دنیا میں درخت کی اوقات نہیں ہے کہ چل پھر سکے, لیکن آقا کریم کے خیمے کے قریب جو درخت کھڑا تھا وہ اپنی جگہ سے کھسکا اور چلتا ہوا میرے آقا کے خیمے کے سامنے آیا, اور سامنے آ کر کے جھک کر کے میرے آقا کے خیمے کے پردے کو سجدہ کر دیا. سرکار کے خیمے کو سجدہ کیا, واپس کھڑا ہوا اور جا کر کے اپنی جگہ پر لگ گیا. یہ ماجرا صحابی رسول دیکھ رہے تھے جو چوکیداری کر رہے تھے, دروازے کے دربان بن کر کے کھڑے تھے. انہوں نے یہ ماجرا دیکھا, اور دیکھنے کے بعد جب سرکار اٹھے, اپنی نیند سے بیدار ہوئے, تو جا کر کے عرض کیا, رسول اللہ میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا ہے یا رسول اللہ, میں سمجھا نہیں کیا ہوا ہے, ذرا آپ بتا دیجئے کہ معاملہ کیا ہے. کس سے پوچھا جا کر سرور کائنات سے, اور میرے آقا تو نیند میں ہے, میرے آقا تو آرام میں ہے. تو میں نے صحابی سے پوچھا, اے صحابی آنکھیں تمہاری کھلی تھی اور تم دیکھ رہے تھے, اور صحابی رسول کی آنکھیں تو بند, صحابی رسول دیکھ رہے تھے, اور نبی کونین کی آنکھیں بند تھی, تو پھر تم نبی سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو صحابی عقیدہ یہ دے رہے ہیں, اور صحابہ کرام کا عقیدہ سن لیجئے میری طرف دیکھ کر کے. صحابی عقیدہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی بھلے سو رہے ہو, آنکھیں بند ہو جاتی ہے لیکن دل بیدار رہتا. آنکھیں بند ہو جاتی ہے لیکن دل بیدار رہا کرتا ہے. اس لیے نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر کے سوال کیا, میرا آقا آرام فرما ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے, اسی لیے تو آپ نیند سے اٹھو گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. میرے سرکار کے وضو نیند کے بعد بھی باقی رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سرکار کا وضو نیند کے بعد بھی باقی رہتا ہے, اس لیے کہ فقط آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل آپ کا بیدار رہتا ہے. جب ہمارے زمانے کا ایک ولی سوتا ہے تو اس کا دل اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے. جب ایک ولی کا یہ عالم ہے تو جو ولی کو ولی بنا رہا ہے اس نبی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, سرور کائنات سے پوچھا, یا رسول اللہ وہ درخت اپنی جگہ سے ہٹا کیوں اور آ کر کے سجدہ کر کے واپس گیا کیسے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا تھا بتائیے. تو میرے آقا بھی فرما سکتے تھے کہ میں تو نیند کے عالم میں تھا. صحابی دیکھا تم نے اس لیے تم بتائیے. میرا آقا نے فرمایا, صحابی بتاتا ہوں. ماجرا یہ ہوا کہ یہ درخت خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, مولا آج تیرا محبوب اتنا قریب آ گیا ہے کہ کبھی اتنا قریب نہیں آئے گا. اتنے قریب آ گئے ہیں سرکار کہ اتنے قریب اب کبھی نہیں آئیں گے. آج جتنی قربت کبھی نہیں ملے گی, ایسی نزدیکی کبھی نہیں ملے گی. اے مولا مجھے طاقت دے, میں چل کر جاؤں اور نبی کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی مجھے اجازت دے, سلامی پیش کر کے آؤ. رب العالمین نے اجازت بھی عطا فرمائی, اس کو طاقت بھی عطا فرما دی, طاقت بھی عطا فرما دی ہے, اس کو اجازت بھی عطا فرما دی ہے. اس لیے یہ درخت آیا تھا اور میری بارگاہ میں سلامی دے کر کے چلا گیا. پتہ چلا دوستوں, آج ہمیں درود پاک پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو ہم ہونٹوں کو ہلاتے بھی نہیں ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. لیکن یاروں ذرا دیکھیے ان درختوں کی قسمت دیکھیے جنہوں نے اپنی غیبی آنکھوں سے نبی کائنات کا جلوہ بھی دیکھا ہے اور میرے آقا کو جھک جھک کر کے سلامیاں بھی پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہے درخت. اور پتھروں کو دیکھو تو میرے سرکار مدینہ پاک میں فرماتے, انی عارف الحجر الآن, میرے آقا فرماتے ہیں اس پتھر کو میں آج تک جانتا ہوں.
تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا پتھر؟ یا رسول اللہ پوری دنیا کے پتھر تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں آقا، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، ہتھیلی کو جیسے دیکھتا ہوں دنیا کو دیکھتا ہوں تو سارے سنگریزے، سارے پتھر، ساری چٹانیں، سارے پہاڑ، سارے بھاگر سب کے سب آپ کی نگاہوں کے آگے۔ آقا کون سے پتھر کی پہچان کی بات کر رہے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ پتھر جو اعلان نبوت سے پہلے میری گلی کے نکڑ پر تھا اور جب میں گزرا کرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میری گلی کے نکڑ پر وہ پتھر رکھا ہوا تھا، جب گزرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو پتہ چلا ایک پتھر کا بھی عقیدہ ہے کہ جو نبی بن کر آتا ہے وہ 40 سال بعد نبی نہیں بنتا بلکہ بچپنے سے ہی نبی بن کر کے آتا۔ سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ یہ عقیدہ دیتے ہوں گے کہ 40 سال بعد نبی بنے ہیں، 40 سال بعد نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، 40 سال بعد رسالت ملی ہے، تو ان سے کہہ دینا نبوت کا اعلان 40 سال بعد کیا ہے، ورنہ نبی کب بنے تھے؟ جب کچھ نہ بنا تھا تب رب نے مصطفیٰ کو نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ لے کر کے جائیے دوستوں، جب کچھ نہ تھا اس کائنات میں، کچھ نہ بنا تھا، تب اللہ کریم نے ایک نور پیدا کیا اور نور کو نبی بنایا، رسول بنایا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا۔ آج دنیا کے سارے مسالک کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رب نے سب سے پہلے جس نور کو پیدا کیا تھا وہ مدینے والے سرکار کا نور ہے۔ تو ان سے کہنا اگر 40 سال بعد نبی بنے، 40 سال پہلے عام آدمی تھے، تو آپ پوچھنا کہ جب 40 سال پہلے عام آدمی ہی تھے نبی، تو اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو کیوں پیدا کیا؟ تیرے باپ کو نہیں پیدا کر دیا؟ جب نبی عام آدمی ہی تھے تو آپ سوال کرنا کہ تیرے باپ کو پیدا نہیں کیا کہ نہیں کیا، تیرے دادے کو پیدا کر دیتا کہ نہیں کیا، کہ کس کو کیا؟ کہ نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو کہنا تو نے مان لیا کہ نبی کے نور کو پیدا کیا۔ جب نبی کو نبی بنانا تھا اس لیے دنیا کو بعد میں بنایا، سب سے پہلے مصطفیٰ کو بنایا، سب سے پہلے نبی کو بنایا ہے۔ تو ایک پتھر کا عقیدہ دیکھیے، وہ پتھر میرا آقا کریم پر سلام پڑا کرتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر آپ پر سلام ہو۔ اب میرے دوستو بات سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھ کر کے، اور سن لیجئے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی پتھر سلام پڑے تو میرے آقا بھولا نہیں کرتے۔ ایک پتھر اگر سلام پڑھ دے تو میرے سرکار بھولا نہیں کرتے۔ جب پتھر سلام پڑھ دے تو نہیں بھولتے ہیں۔ اگر کوئی غلام سلامیں پڑھے گا، ہر فجر میں سلام پڑھے گا، ہر عصر میں سلام پڑھے گا، ہر جمعے میں سلام پڑھے گا، تو قبر میں فرشتے پوچھیں گے بتاؤ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو نبی پاک فرمائیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں بلکہ مجھ سے پوچھو کہ غلام کتنا بلند ہو چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا دوستو دیکھیے یہ پتھروں کی درود و سلام ہے میرے آقا کریم کی ذات پر۔ آج انسانوں کا مجمع بیٹھا ہے اور بالکل نیند کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، نہ نعروں میں شریک ہو رہا ہے نہ تقریر میں شریک ہو رہا ہے۔ ارے یاروں خوشیاں مناؤ، تمہارے اور ہمارے نصیب کہاں تھے؟ یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب اعظم ہمیں عطا فرما دیا۔ دنیا میں آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہو؟ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کو کیا کہتا؟ پردے میں رہا کر تاکہ میرے سوا تجھے کوئی نہ دیکھے، ہے نا؟ جب ایک محبت کرنے والا محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کی قربانی نہیں دے سکتا، وہ اپنی جان دے دے گا لیکن اپنا محبوب نکال کر کسی کو نہیں دے گا، اپنے محبوب کو جو ہے تیاگے گا نہیں، اپنے محبوب کو دوسرے کے حوالے کرے گا نہیں۔ یہ محبت کی مریادہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کے بعد اپنے محبوب کو کسی کے حوالے نہیں کرتا، لیکن رب العالمین سب سے زیادہ مصطفیٰ پیارے سے محبت کرتا ہے اور محبوب اعظم بنایا ہے، اس کے باوجود بھی 12ویں کی صبح وہی محبوب تمہیں عطا
فرما دیا ہے، ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو عطاؤں کی حد کر دی مولا نے کہ اپنا محبوب اعظم بھی مصطفیٰ کی امت کو عطا فرما دیا۔ ذرا دیکھیے محبت کی کیسی اللہ پاک نے محبت کو کیسے ہمارے حوالے کیا، محبوب اعظم کو ہمارے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد بھی ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی ادھر ادھر تاک جھانک کر رہے ہیں اور قدر و اہمیت کو نہیں جان رہے ہیں۔ دوستو قدر و اہمیت کو اس حدیث پاک سے جانے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑ کس کا ہوتا ہے؟ پتھر کا۔ بولو، سب چپ چاپ ہو گئے، ان کے اسٹیل کا بھی پہاڑ ہوگا کوئی، پتھر کی ہوتا ہے نا بھائی، بولو نا یار، پتھر کا پہاڑ ہوتا ہے تو پتھر محبت کرتا ہے کسی سے۔ ہماری دنیا میں یہ دستور ہے کہ جو کسی سے محبت نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں یہ پتھر دل ہو گیا ہے، کسی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا اس پہاڑ کو کہہ رہے ہیں، پہاڑ اور بھی ہے مدینہ المنورہ میں، لیکن احد پہاڑ کے لیے سرکار فرما رہے ہیں یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب بتائیے پیار کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ 40 دن کے چلے نکالے تھے پہاڑوں نے، یا نمازیں ادا کی تھی، یا روزے پہ روزے رکھے تھے، یا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہاڑ مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہے، اس لیے یہ عبادتیں اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی محبت کا عمل کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرا آقا اپنے صحابیوں کو لے کر جب پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو رب نے آنکھیں دی ہے، اس سے دیکھا کہ سرکار آ چکے ہیں، تو پہاڑ میرے آقا کے آنے پر جھومنے لگ گیا۔ سبحان اللہ، پہاڑ جھومنے لگ گیا۔ آپ کے یہاں پہاڑ جھومے تو بھوکپ آ جائے، آپ کے یہاں پہاڑ کانپے تو زلزلہ آ جائے، آپ کے یہاں پہاڑ کانپنے لگے تو آپ ڈر ڈرا کر کے میدانوں کی طرف بھاگیں گے کہ کہیں پہاڑ ٹوٹ کر کے نہ بکھر جائے یا کوئی جوالا مکھی نہ نکل جائے۔ لیکن آقا کریم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ جھوما، پہاڑ مچلا، پہاڑ فست کرنے لگا۔ میں نے پوچھا پہاڑ تو کبھی ہلا نہیں کرتا؟ کہا مختار کائنات آیا ہے، سرکار کی آمد ہوئی ہے، نبی تشریف لائے ہیں، اب نہیں ہلوں گا تو کب ہلوں گا؟ ان قدموں میں تاثیر ہی اتنی ہے کہ پتھروں میں بھی جان پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں ذرا دیکھیے اس پتھر کو، دیکھیے میرے آقا کریم کی آمد پر خوشی منانے لگا اور خوشی میں جھومنے لگا، مچلنے لگا، تو پتہ چلا نبی کی آمد پر جو خوشی مناتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں نحبہ ویحبنا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کی آمد کی خوشی تھی، نبی کی تشریف آوری کی خوشی تھی، نبی کے قدم رنجہ فرمانے کی خوشی تھی۔ جب پہاڑ نبی کے آنے کی خوشی منا لے تو نبی فرمائے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایک انسان نبی کی آمد کی خوشی منا لے گا تو میرا اللہ اسے کتنا قبول فرما لے گا، میرے سرکار کتنے قبول فرما لیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں ایسی مجلسوں کا انعقاد کیا کرو، ایسی مجلسوں میں بیٹھا کرو، نبی پاک کی پاکیزہ پاکیزہ باتیں سنا کرو کہ میرے سرکار کا پیار کن کن کے دلوں میں تھا۔ آپ نے دیکھا کتنے دلوں کے اندر درخت آ رہے ہیں، جھک کر سلامی دے رہے ہیں، وہ مکے کا پتھر بھی سلامی میرے آقا کو دے رہا ہے، اور یہاں پورا پہاڑ مچل رہا ہے۔ اور میرا آقا جب مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، سرکار مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو میرے سرکار جب مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، مسجد نبی بنائی، تو مسجد نبی بنانے کے بعد ایک لکڑی گاڑ دی گئی جس لکڑی پر ٹیک دے کر میرے سرکار تقریر فرمایا کرتے تھے۔ تقریر کو کہتے خطبہ۔ میرے سرکار لکڑی پر ٹیک دے کر کھڑے ہو کر کے خطبہ فرمایا کرتے۔ یہ کھڑا ہو کر کے خطبہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے، آپ میری طرف مت دیکھنا گناہگار ہو، لیکن میرا آقا کریم کھڑے ہو کر کے لکڑی پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے۔ تب ایک عورت تھی، نبی پاک کو کھڑے کھڑے خطبہ کرتے دیکھا اور لکڑی پر ٹیک لگا کر کے، تو وہ عورت ایک جو ہے لکڑی کا اسٹیج بنا کر لے آئی، یعنی ممبر بنا کر لے آئی کہ یا رسول اللہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ دیا کرے تاکہ دور بھی کوئی بیٹھا رہے اور آپ بلند رہیں گے ممبر پر تو سب کو نظر آ جائیں گے۔
जुमे का वक्त है, मेरे सरकार तशरीफ लाए और तशरीफ ला करके जैसे ही मिंबर पर चढ़े और मिंबर पर चढ़ना था, आपने कदम मिंबर पर रखे और मस्जिद की एक जानिब से रोने की आवाज आई, ऐसे रोने की आवाज जैसे कोई बच्चा बिलबिला करके रोया करता है, दूध पीता बच्चा रोया करता है, ऐसे रोने की गिड़गिड़ाने की आवाज आई। सहाबा भी हैरान थे, नबी कौनो मका भी हैरान थे, इसलिए कि जुमे का वक्त और वो भी खुतबे का वक्त है, तो सन्नाटा हर तरफ छाया था और अगर एक कतरा भी एक जर्रा भी गिरता तो आवाज आ जाती, लेकिन इस खामोशी का आलम तोड़कर और इस सुकूत का माहौल तोड़ करके रोने की आवाज बुलंद कहां से हुई? ना कोई बच्चा नजर आ रहा है, ना कोई बच्ची नजर आ रही है, ना कोई रोने वाला नजर आ रहा है, ना कोई गिरिया करने वाली नजर आ रही है। मौला आवाज कहां से? कोई नहीं पहचाना कि ये रोने वाला कौन है, फकत मेरे आका पहचाने। मिंबर से उतरे और जाकर उस लकड़ी को गले लगा लिया जिस लकड़ी पर पहले खुतबा दिया करते थे, गले लगा लिया सरकार ने। अभी सिद्दीक देख रहे हैं कि कौन रो रहा है, फारूक देख रहे हैं कि रोने वाला कौन है, उस्मान देख रहे हैं कि रोने वाला कौन है, मौला अली भी नहीं पहचान पाए हैं, लेकिन नबी ने पहचान लिया है कि मिंबर पर खुतबा जैसे ही देना शुरू किया तो लकड़ी को पता चल गया कि नबी ने आज मुझे छोड़ दिया है और मिंबर पकड़ लिया है, इसलिए नबी की जुदाई में लकड़ी ऐसे रो रही है जैसे कोई दूध पीता हुआ बच्चा रो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे दोस्तों बताओ, आपके घर में कभी लकड़ी रोई? कभी रोई लकड़ी आपके घर में? और नहीं रोई तो सुभान अल्लाह कहो। अचुंबे वाली बात है कि नहीं है? ये सरकार की मस्जिद है, मस्जिद नबी है, आकाए कौनो मका की प्यारी मस्जिद, जहां पे लकड़ी पर खुतबा देते। आज मिंबर पर चले गए, लकड़ी को पता चल गया नबी मुझसे जुदा हो गए, नबी मुझसे अलग हो गए, नबी की जुदाई बर्दाश्त ना हुई, लकड़ी रोने लगी। मेरे आका ने गले लगाया तो ऐसे चुप हो गई जैसे बच्चे को माँ की छाती मिल जाया करती है, सुकून मिल गया लकड़ी को, लकड़ी खामोश हो गई। मैंने लकड़ी से पूछा, लकड़ी, मैंने दुनिया की सारी लकड़ियों को टटोल कर देखा, कानों से लगा कर देखा, मगर रोने की आवाज कभी नहीं आया करती है। ये लकड़ी तुझसे रोने की आवाज कैसे आई? तो लकड़ी जवाब देती है, मुझसे नबी का बदन लगा है, नबी का जिस्म लग गया है, और नबी का जिस्म जिससे लग जाए मुर्दा भी हो तो जिंदगी मिल जाती है। मुझे रोने की ताकत नबी कौनैन की निस्बत ने अता की है। मेरे आका ने गले लगाया और गले लगाकर पूछा, है लकड़ी रोने की क्या वजह है? या रसूल अल्लाह, आपने मिंबर ले लिया, मुझे छोड़ दिया। मेरे सरकार ने फरमाया, अब तो मिंबर पर बैठना पड़ेगा, लेकिन मुख्तारे कायनात बता क्या करो, हाथ फेर दूं तुझे तो दरख्त बना दूं, मेरे सहाबा तेरे फल खाते रहेंगे, और अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत अता कर दूं यही खड़े खड़े। तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे जन्नत में भेज दीजिए। लकड़ी बोली, मेरा आका करीम ने मिंबर उठाया और मिंबर के नीचे लकड़ी को गाड़ दिया, इसलिए कि माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह, कि नबी के घर के और नबी के मिंबर के दरमियान जो जगह है वो दुनिया की जगह नहीं है, वो जन्नत की जगह है, वो जन्नत की क्यारी है। इसलिए नबी कोनो मकान मिंबर उठाया और मिंबर उठा करके लाठी को गाड़ दिया और फरमाया, ये जन्नत में जा चुकी है, ये नबी कायनात का इख्तियार है, जिसे चाहे जन्नत दे दे, जिसे चाहे जन्नत से दरकिनार कर दे। और ये लकड़ी का प्यार है कि मेरा आका की जुदाई में रो रही है, वो पत्थरों का प्यार है कि सलामी भेज रहे हैं, और जानवरों का प्यार अलग है जो मुस्तफा को मनाने के लिए सजदा रेज हो जाया करते हैं। एक छोटी सी बात गुजारिश करके आगे बढ़ो। मेरा आका जब आस्तीन उठाकर हाथों में छुरी लेकर मस्जिद नबवी से निकला करते, जुमले पर गौर करना, मेरे सरकार जब आस्तीन उठाकर हाथ में छुरी लेकर किसी जानवर के ज़िबा के इरादे से जब मस्जिद से निकला करते थे तो मदीने की बकरियां दौड़ दौड़ करके आती थी, कहती थी, या रसूल अल्लाह मुझे कुर्बान कर दे, या रसूल अल्लाह मुझे कुर्बान। आज आपकी छुरी देख के तो साल भर पला हुआ बकरा आपसे बगावत कर ले और अलम बगावत बुलंद कर ले, लेकिन कोनो मका के ताजदार की अजीम शान अजमतों को देखो कि मेरे आका जब छुरी लेकर के निकलते तो बकरियां दौड़ दौड़ करके आया करती और अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मुझे कुर्बान कर दीजिए मुकद्दस हाथों से, मुझे कुर्बान कर दीजिए मुकद्दस हाथों से। तो है मेरे नबी के गुलामों, ये जानवरों का प्यार है। एक और बात याद आ गई दोस्तों, मेरे सरकार की बारगाह में एक शख्स ने बेल तोहफे में भेजा। क्या भेजा? बेल, जानते हैं ना,
बेल, बड़ा बेल को तोहफे में भेजा। मेरे सरकार ने अपने हुजरे के बाहर बांध दिया, घर के बाहर। मेरे सरकार जब बाहर निकलते घर से तो बेल नाचता, सरकार को देख करके बेल नाचता, कभी सामने नाचता, कभी इधर नाचता, कभी इधर नाचता, कभी पीछे नाचता, वज्द करता मेरे आका के इर्द गिर्द। और जैसे ही सरकार हाथ उठा करके रखते तो ऐसे खड़ा हो जाता जैसे कि जान निकल गई है, बिल्कुल हरकत नहीं करता। ये सरकार का अदब था। तो मैंने पूछा, ए बेल ये नाचता क्यों है? तो बेल जवाब देता, सिद्दीक तो नहीं हो कि कांधे पर उठाकर गार तक ले जाऊं यार को मना लो, फारूक तो नहीं बन पाया कि नबी के कदमों में जाने लुटा करके नबी को मना लो, ऐसा रुतबा तो नहीं मिला कि उस्मान बन करके अपने दौलतों को कदमों पे लुटा करके यार को मना लो, ऐसा रुतबा तो नहीं मिला कि खैबर का किले का दरवाजा उखाड़ करके नबी को राजी कर लो। तो कुछ न मिला है कि जानवर बना हो, हुनर कुछ नहीं आता है, इसलिए जितना आता है उसी हुनर को आजमा आजमा करके नच नच लिया करता हो ताकि अपने यार को मना लो, नबी को राजी कर लो, वस्त कर करके मना लो। अगर कुछ और होता तो जाने लुटा देता, जानवर हो इसलिए नचा करता हूं कि मुझे देखकर मेरा यार मान जाए, मेरा यार खुश हो जाए। जरा देखिए मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत थी, ये प्यार था। आज इंसानों में ऐसी मोहब्बत कहां देखने में मिला करती है, ऐसी मोहब्बत कहां है? नबी के नाम का चरागा करो तो अल्जाम उठा देते हैं, नबी के नाम की झंडियां लगाओ तो अल्जाम तराशी होती है, नबी के नाम का जुलूस निकालो तो अल्जाम तराशियां होती है। आओ दोस्तों, अब सारी बातें सुनने के बाद हम मिलाद मुस्तफा का बयान भी सुन लेते हैं कि सरवरे कायनात जब तशरीफ लाए तो अल्लाह पाक ने कायनात को कैसे आरास्ता और पेरास्ता किया, किस तरीके का माहौल था, वो कैसा वक्त था जिसको बरेली का बाबा झुक झुक करके यूं सलामी पेश करता है। जिस सुहानी खड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों, सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये मेरा आका की वालिदा पाक है। आप इरशाद फरमाती है, सरवरे कौनो मका की वालिदा मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान फरमाती है कि जिस रात नूर मुस्तफा मेरे शिकमे पाक के अंदर तशरीफ लाया वह जुमे की रात थी और रजबुल मुरज्जब का पाकीज़ा महीना था, और उस रात मेरे पेट में जैसे ही नूर मुस्तफा तशरीफ लाया मैंने महसूस किया कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में खुशबुओं को फैला दिया है, पूरी दुनिया के अंदर खुशबुएं फैली हुई है। और आप जब सुबह उठी तो फरमाती हैं सैयदा आमना कि कल तक जब मेरे जिस्म से पसीना आता था तो पसीने के अंदर बदबू का एहसास हुआ करता था, लेकिन आज जब पसीना आ रहा है तो पसीने में खुशबुएं महक रही है मेरी, पसीना मुअत्तर है मेरा, पसीना मुअम्बर है मेरा, पसीना इत्रबेज है मेरा, पसीना खुशबू वाला है मेरा। मैंने कहा मौला ये खुशबुएं कहां से आई? तो इतने में देखा बाद सरसर के नसीम झोंके चले, यानी सुबह की पुरवाई हवा चली और ठंडी हवा कान के करीब गुजरते गुजरते मुझे कुछ कहती हुई जा रही थी। तो मैंने गौर किया और सुना तेजी के साथ कि क्या कह रही है। तो हवाएं पुकार करके रही थी, अस्सलामु अला मन हमल दिया आमिना, ए आमिना जो नूर तू उठाए हुए है उसकी अज़मतों को हमारा सलाम हो, उसकी अज़मतों को हमारा सलाम हो। ये हवाएं सलामी पेश कर रही थी। सैयदा आमना फरमाती है मैं घर की बहू बन करके आई थी इसलिए सारा काम मुझे करना था, लेकिन एक काम करती और काम करके जब फारिग होकर पलट कर देखती तो सारे काम अल्लाह पाक गैब से करवा दिया करता, सारे काम फारिग हो जाया करते थे। सैयदा आमना फरमाती हैं कभी मुझे कोई तकलीफ का एहसास ना हुआ, कभी मुझे कोई दर्द का एहसास ना हुआ, कभी मेरे पेट में कोई हरकत का एहसास मुझे ना हुआ। अच्छे से दिन गुजर रहे थे, यहाँ तक कि डोल लेकर के पानी लेने के लिए जाया करती थी तो डोल लेकर घर से निकलती तो मैं देखती कि दरख्तों की डालियां झुक झुक जा रही है मेरे आगे, दरख्तों की डालियां झुक झुक जाती थी और उनसे भी आवाज सलामी की आती थी, आमिना तेरे शिकम में पलने वाले मुस्तफा प्यारे को हमारी मोहब्बत का सलाम पेश हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा आमिना फरमाती हैं
आगे बढ़ती और किसी चट्टान पर अगर मेरा पांव पड़ जाता, चट्टान बड़ी सख्त होती है, पांव मेरा पड़ जाता तो चट्टान मोम बन जाती, मेरे निशाने कदम को ले लिया करती थी, निशान बन जाता था मेरे कदमों का उस चट्टान के ऊपर, और वो पत्थर धंसता चला जाता था, मेरे निशाने कदम बन जाया करते थे। इसलिए कि आमना तुम्हारे पैर भारी है, कहीं सख्त मिट्टी सख्त पत्थर पर रखने की वजह से तुम्हें तकलीफ का एहसास ना हो जाए, इसलिए ये पत्थर मोम बन करके अपनी गुलामी का सबूत देता नजर आता। सुभान अल्लाह। वो पत्थर भी कितने बुलंद थे, कितने खुशनसीब थे जिन्होंने मेरे आका की मादर मुशफिका का ऐसा लिहाज रखा और ऐसा अदब और एहतराम किया। आज कैसे पत्थर दिल इंसान हो गए हैं कि नबी के नाम पर न जाने कितने सवालात पैदा हो जाया करते हैं। खैर उधर की बात नहीं करते, हमारी निगाहों के सामने हमारे स्टेज पर एक ऐसा जलवा तशरीफ लाने वाला है कि उनकी सारी दलीलें एक तरफ होगी, रसूल पाक के बेटे का जलवा एक तरफ होगा। हमें दलीलों की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ मामला ये नहीं है, लेकिन उलमाए किराम बेटे जोधपुर में माहौल खराब है तो जोधपुर की तकरीर में मैंने कहा, उन्होंने पूछा कि भाई इसकी दलील क्या है, इसकी दलील क्या है, इसकी दलील क्या है। मैंने कहा कुछ जवाब ना दो, सिर्फ एक ही जवाब दो कि हम तो नबी को बगैर दलील के मानते हैं। तेज बोलो, हम तो नबी को बगैर दलील के मानते हैं। कोई पूछे कैसे, का शैतान को चाहे जितनी दलीलें दो, इल्म बहुत है, जरा काट देता। शैतान के पास तो इल्म है। इमाम राजी शैतान आकर के मौत के वक्त खड़ा हो गया और आकर के कहने लगा कि भाई खुदा एक है, दलील दो। इमाम राजी ने एक दलील दी, काट दी उसने, दो दलील दी, काट दी उसने, तीन दलील दी, काट दी उसने, 360 दलीलें दी और 360 दलीलें शैतान ने जब काट दी तो इमाम राजी ने आंखों को बंद करके पुकारा, ए मुर्शिद अल मदद, ए मेरे पीर कामिल अल मदद। देखो पीर यहाँ काम आता है। लोग कहते हैं ना पीर साहब कहाँ काम आते हैं, हमारे पीर तो नबी है। मैंने कहा तुझसे बड़े गौस पाक थे, उन्होंने भी पीर बनाया है शेख अम्माद को। इरशाद फरमाती हैं कि मैं डोल लटकाती कुएं के अंदर, इसलिए कि ये जो है धोरों का इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, पानी बहुत नीचे रहा करता है। मैं डोल लटकाया करती थी तो मेरा डोल नीचे नहीं जाता था, उससे पहले पहले कुएं का पानी मुंडेर पर मेरे इस्तकबाल के लिए आ जाया करता था कि आमना तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे खींचने में, इसलिए तुम डोल लटकाओ, कुएं का पानी खुद तुम्हारे इस्तकबाल के लिए ऊपर आ चुका है। सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक महीना गुजरा, पैगंबर की जियारत ख्वाब के अंदर हुई, दूसरा महीना गुजरा, एक और नबी मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। इस तरीके से हर महीने नए नए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाया करते थे और मेरे लाडले बेटे की आमद की बशारतें दे दिया करते थे। और चुनांचे इसी तरीके से गुजरते गुजरते 9 महीने मुकम्मल गुजर गए और मीलाद की पाकीज़ा शब मेरी निगाहों के सामने आ गई और मैंने देखा मीलाद की रात यानी आका की आमद की रात, 12वीं रात इसी महीने की, रबीउल अव्वल 12 तारीख पीर का दिन, और यही शबे पीर थी। सैयदा आमना फरमाती हैं, मैंने जब आसमान की तरफ निगाह को उठा के देखा तो मैंने ये देखा कि आसमान के सितारे मेरे घर की जानिब झुके हुए हैं, नीचे आ चुके हैं सितारे, और सितारे बड़े बड़े हो चुके हैं, इसलिए कि सितारे छोटे नहीं हैं, उनका हजम कई सितारे तो दुनिया से भी बड़े हैं, पृथ्वी से भी बड़े हैं। तो करीब करीब से जब सितारों को देखा मैं डरने लगी, डर करके सिमट के पांव मैंने अपने सिमटना चाहे तो हातिफे गैबी से आवाज आई, आमना डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सितारे टूट कर गिरने के लिए नहीं बल्कि तेरे लाल की आमद पर रोशनी करने के लिए झुकाए गए हैं, चरागा करने के लिए झुकाए गए हैं, प्रकाश करने के लिए झुकाए गए हैं। ये चरागा है, ये मिन जानिबिल्लाह है, ये सुन्नत है, परवरदिगार है, ये रब की सुन्नत है कि महबूब आता है तो मौला सितारे झुका करके चरागा फरमा दिया करता है। ये खुदा की सुन्नत है। अगर कोई पूछे ये चरागा किसका तरीका, ये सिद्दीक फारूक को उस्मान और हैदर का तरीका, तो आप कहना कि ये चारों जिसे सजदा करते हैं ये उस परवरदिगार का तरीका है, उसी की सुन्नत करीमा है। और रब फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि अल्लाह ताला के कलमात में कोई तब्दीली नहीं कर सकता और अल्लाह ताला की सुन्नतों को कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जब तक ये मेरा आका की आमद का सिलसिला चलता रहेगा, चरागा भी इसी तरीके से होता रहेगा।
रहेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी वालिदा फरमाती हैं, मैंने देखा कि मेरा लाल तशरीफ लाया इस कायनात में और नजर उठा के देखा तो अपने घर में मैंने पूरी दुनिया को मुनव्वर देख लिया। घर में बैठी थी और नजर उठाई तो कायनात मेरे सामने मुनव्वर थी। इसीलिए शायर कहता है कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। मेरे दोस्तों, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपकी प्यारी वालिदा फरमाती है मेरा लाल जब तशरीफ लाया तो जिस्म धुला हुआ था, शाफो शफाफ था और सलसबील और तस्लीम का पानी के कतरे ऐसे जिसमें नाजनी से टपक रहे थे कि मुस्तफा अभी अभी नहा के तशरीफ लाए। हम भी दुनिया के अंदर आए और हम जब पैदा हुए तो गंदे, बिल्कुल खून में लिथड़े हुए, गंदगी की हालत में, लेकिन कौनैन का ताजदार जब तशरीफ लाया तो मेरे आका करीम का जिस्म बिल्कुल सुथरा है, साफ व शफाफ है और गुस्ल के कतरे मेरे आका के जिस्म से टपक रहे हैं। और देखा कस्तूरी की खुशबू, मुश्क की खुशबू धुआं बनकर सरकार के जिस्म से उड़ रही है, खुशबुएं महक रही है, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई है, बाल सवारे हुए, बीच की मांग डाली हुई, सवारे हुए बाल हैं, आंखों में सुरमा लगा हुआ है और जिस्म साफो शफाफ है और खुशबुएं महक रही है और मेरा आका की खतना भी की हुई है और मेरा आका की नाल अपनी माँ की नाल से जुदा है। आप जानते हैं बेटा जब आता है दुनिया में तो उसकी नाफ का रिश्ता माँ की नाफ के सरे रिश्ता से जुड़ा रहता है, यानी बेटे की सुंडी माँ की सुंडी से जुड़ी रहती है, एक नाली जुड़ी रहती है। अगर ये नाली जुड़ी ना रहे तो बेटा जिंदा, आप सुन तो रहे हैं मेरी बात, बस थोड़ी सी बात, जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आका करीम जब तशरीफ लाए तो माँ की नाल जुदा थी, बेटे की नाल जुदा थी। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह माजरा क्या है? डॉक्टर कहता है कि बगैर नाल के जुड़े हुए कोई बच्चा जिंदा रह नहीं सकता। तो या रसूल अल्लाह आप, तो मेरा आका फरमाते हैं मैं माँ के पेट से जरूर आया हूँ लेकिन माँ के पेट का मोहताज नहीं था, इसलिए कि दुनिया मेरी मोहताज है, मैं किसी का मोहताज माँ के पेट से इसलिए आया कि यही कानून खुदाबंदी है, यही निजाम कुदरत है कि दुनिया में जिसको भी आना है शिकमे मादर से आना है। मैं माँ के पेट में रहा लेकिन माँ का मोहताज बन करके नहीं रहा। मुझे माँ के पेट से ग़िज़ा नहीं मिलती, मुझे तो रब गैब से नूर की ग़िज़ा अता फरमाया करता है। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान के साथ तशरीफ लाए, बसद अंदाजी यकताई, बगाए शान ज़ीबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सबसे पहले सरकार पाक ने अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका करके अल्लाह की तस्बीह बयान की। थोड़ा तेज बोल दो भाई। सरकार तशरीफ लाए, सबसे पहले क्या किया? सजदा किया। बोलो ना, सजदा, तेज बोलो। सबसे पहले सजदा किया। तो अब कोई पूछे कि मीलाद का चिन्ह क्या है, मीलाद की निशानी क्या है, मीलाद की पहचान क्या है, तो कहना सजदा। इसलिए कि नबी पाक तशरीफ लाए और सबसे पहले जो काम किया है मेरा आका ने खुदा की बारगाह में झुक करके अपने मौला की तस्बीह बयान की है और बता दिया है सच्चा मीलादी वही होगा जो नमाजों की पाबंदी करेगा और सजदों की पाबंदी करेगा। समझ गया? मैं लेकर के आ गया बात अपने घर तक। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा मोहल्ला बनी हाशिम के अंदर मीलाद हुई मेरे सरकार की, और मैं खींच के आपके घर तक बरकतें लेकर के आ गया। अब हम भी चाहें कि मीलाद को सेलिब्रेट करना है तो मेरे यारों सजदा किया करो, अल्लाह करीम सच्चा मीलादी बना देगा। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, रब की तस्बीह भी की, अपनी उम्मत गुनाहगार के लिए खुदा की बारगाह में मगफिरत भी चाहिए। और जब मेरे आका दुआ करते हैं मगफिरत की तो बरेली का बाबा यूं फरमाता, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत ने चुप कर गले से लगाया, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे दोस्तों, शहर आते हो कभी कभी ना तो सिटी में आप आके देखते हो, घड़ी की दुकान देखी होगी कभी, घड़ी जहाँ घड़ियाँ मिलती है तो सारी घड़ियों में कितनी बजती है?
सारी घड़ियों का वक्त आप देखेंगे तो 10:10, कल जाके देख लेना। घड़ी की दुकानों में सब घड़ियां बंद रहती है और उनका वक्त रहता है 10:10। क्यों रहता? घड़ी ईजाद करने वाला कोई ईसाई है, उसने सारी घड़ियों का वक्त 10:10। जितने अंग्रेज लोग आए वो सुबह ऑफिस खोलते हैं 10 बजे, काम शुरू करते हैं 10 बजे, दुकान का उद्घाटन 10 बजे, निकाह करते हैं 10 बजे। आप भी देखते होंगे सरकारी ऑफिस और दफ्तर 10 बजे खुलते हैं ही नहीं खुलते? आपने कभी पूछा 10 बजे क्यों खुलते? ईसाई जवाब देते हैं, अंग्रेज लोग जवाब देते हैं, हमारा हर काम 10 बजे इसलिए शुरू करते हैं इसलिए कि 10 बजे हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। दुनिया में तशरीफ आवरी उनकी 10 बजे हुई थी, इसलिए अपना सब काम 10 बजे शुरू करते हैं ताकि नबी की पैदाइश के वक्त की निस्बत से अल्लाह बरकत अता फरमा दे। मुझे बताइए, आपसे पूछता हूं, ये मिलाद मनाने वालों, चरागा करने वालों, जुलूस निकालने वालों, झंडियां लगाने वालों, इतने बड़े बड़े मिलाद के इजलास करने वालों, आपके नबी कितने बजे पैदा हो गए? पता है हमें? मालूम है वक्त? बताइए। बिल्कुल कुछ भी पता नहीं। उनको देखिए नबी का वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, नबी की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, घड़ियों के अंदर वक्त लगा रखा, ऑफिस खुलेगा 10 बजे, निकाह होगी 10 बजे, उद्घाटन 10 बजे, सारे काम 10 बजे होंगे। और सच्चे नबी, वो भी नबी हमारे हैं और ये भी नबी हमारे हैं। वो तो कहते हैं हमने हजरत ईसा को सूली पे चढ़ा दिया, ये तो कुरान कहता है माँ कतलू हो वो माँ सलबू हो। तो नबी सरकार ईसा भी हमारे हैं। लेकिन दोस्तों, वो जिनका कलमा पढ़ते हैं उस नबी की पैदाइश को इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। ए नबी के मानने वालों, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हमारे नबी कब तशरीफ लाए। झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वज्द कर रहे हैं, झंडियां लगाई जा रही है, चरागा हो रहा है। कोई मजाक बनाने वाला मजाक बना के चला जाए। इसलिए आज वक्त सुन लो, सुबह सादिक का वक्त था, वो फजर से पहले का सुहाना वक्त था, जब पूछ फट रही थी, रात जा रही थी, दिन जल्दी के साथ आ रहा था। नमाज फजर के पहले का जो वक्त होता है, ये सरकार की मिलाद का वक्त है। और मेरे अल्लाह ने इस वक्त को ताबिंदा रखने के लिए नमाज फजर को फर्ज कर दिया। ए मेरा उम्मती, उठ और फजर की नमाज पढ़ ताकि मेरा फर्ज भी अदा हो जाए, मिलाद की मोहब्बत भी अदा हो जाए। तो मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को सेलिब्रेट मेरा परवरदिगार यूं करता है। ए उम्मतियों, उठो, फजर के वक्त उठो, दरवाजा खोलोगे तो रहमत के फरिश्ते बरकतों का खजाना लेकर तेरे घर में दाखिल हो जाएंगे। तू मस्जिद जाएगा, जिब्रील रहमत का बाड़ा लेकर तेरे घर में चला जाएगा। मेरे दोस्तों, कहाँ हम सोए हुए हैं, हमें नमाजों की कोई परवाह नहीं है। अगर फजर की नमाज पढ़ोगे तो मुस्तफा की मोहब्बत का हक भी अदा हो जाएगा, खुदा का फरीजा भी अदा हो जाएगा। तो आज इस चमकते चेहरे को देखकर, इस जलवाए जाना को देखकर, इस तलाते जमाल को देखकर, इस रुखे ज़ेबा को देख करके ये नियत करें इंशाअल्लाह आज से हमारी नमाजें नहीं छूटेगी। बोलो भाई बोलो, थोड़ी सी आवाज आई और बोलो, एक बार और। मैंने फर्ज थोड़ी की है जो इतना बुलवा रहा हूं, रब ने फर्ज की है और बहुत मारेगा कयामत में अगर नहीं पड़ी तो। अगर वोट नहीं दिया तो कोई नेता नहीं मारने वाला है, और जुमा छोड़ दिया हमा हमी में या कोई नमाज भी तर्क कर दी तो फरमाया एक नमाज के बदले 9 लाख साल जहन्नम में जलना है। कितने लाख साल? 9 लाख। बोलो ना यार भाई। हाँ, अभी थोड़ी डाल रहा हूँ जहन्नम में। वो रब्बुल आलमीन चाहे माफ फरमाए, वो करीम है, कारसाज है, लेकिन लिखा है नबी कौनैन ने फरमाया एक नमाज भी छोड़ी तो कितने साल? 9 लाख साल। आज घर पे जाके जलसे के बाद मोमबत्ती लगाना और मोमबत्ती लगा करके ऊपर अंगली ठहराना उस आग के ऊपर। कितनी देर ठहरा सकते हो कल फोन करके बताना कि 2 मिनट जल सकता हूँ, कि 2 सेकंड जल सकता हूँ, कि 10 सेकंड। हाँ, हंसने की बात नहीं है ये। आज जाकर के प्रैक्टिस कर लेना। 9 लाख साल जलना है भाई हमें, नमाज़ें छोड़ना धड़ल्ले के साथ।
जब इतना सारा जलना है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे तो यही आग का सामना होना है। और अगर नहीं तो आज ही अहद करके उठें कि जितनी कज़ा हुई है उसे भी लौटाएंगे, और आज के बाद सच्चे मीलादी बनकर ना सजदा कज़ा करेंगे ना नबी का सलाम कज़ा करेंगे। आखिरी एक बात गुजारिश कर दूं, हदीस पाक है, मदीना पाक के अंदर एक औरत मेरे आका को ढूंढ रही है, बड़ी परेशान है, ढूंढ रही है, कभी इधर भागती है कभी इधर भागती है। लोगों ने पूछा क्या कि सरकार से मिलना। हमें बता दे कि काम सरकार ही से है, हुजूर पाक से मिलना। बहुत देर बाद सरकार से मिल गई, मेरे आका से मिली। मेरे आका ने फरमाया क्यों परेशान है? तो अर्ज किया रसूल अल्लाह मुझसे एक गुनाह हुआ। सुनना बड़े गौर से, मुझसे एक गुनाह हुआ और गुनाह की पादाश में एक नाजायज बच्चा हुआ। मैंने उस बच्चे को मार दिया, मारकर सिरके की बोतल में डाल दिया। सिरका माने शरबत, सिरके की बोतल में डाला। 3-4 महीने बाद मेरा बच्चा भी सिरका ही बन गया, मरमरा करके। जैसे गधा नमक की खान में गधा बन जाता है ना, नमक बन जाता है, इस तरीके से बच्चा भी सिरका बन गया। मैं बाजार लेकर के आई, सिरका बेचा, मदीने वालों को बेच बेच के सिरका खुला दिया, यानी बच्चा खुला दिया। या रसूल अल्लाह इतना बड़ा गुनाह किया, आज मेरा दिल की खिड़की खुली है, रोना आ रहा है। या रसूल अल्लाह करूं तो क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया बस इतनी सी बात। क्या फरमाया? बस इतनी सी बात। मैं तो समझा तेरी असर की नमाज छूट गई है। बात अगर समझ में आई तो बहुत बढ़िया, और नहीं आई तो फिर वाह। और समझ में क्यों नहीं आया? आप तो सब व्हाट्सएप वाले हैं ना, रंगीन फोन वाले हैं, दिन रात फोन चालू रहता है। इसी फोन के अंदर मशगूल होकर के ईशा मगरिब असर कुछ पता ही नहीं रहता आपका। इतने मोबाइलों के गुलाम बने हुए हैं आप, जहां देखो मोबाइल लेकर के खड़े हो जाते हैं। रातें भी इसी में गुजरती होगी, दिन भी इसी में गुजरते होंगे। इतने समझदार हैं कि यूट्यूब को समझते हैं, और न जाने क्या क्या चीजें जो मैं नहीं जानता हूँ वो सब समझते हैं। गांव के रहने वाले हैं, विकास भले कहीं हुआ नहीं हुआ, मोबाइलों का विकास जरूर हो गया है, तो सारी बातें समझते होंगे। मेरे आका ने फरमाया बस इतनी सी बात, परेशान हो रही है। अरे मैंने तो समझा तेरी असर की नमाज छूट गई है, पता चला कि असर की नमाज का छोड़ना उस गुनाह से भी भारी है। बोलो कितनी असर की नमाज छूटी है? लोग कहेंगे मौलवी साहब ये पूछो कितनी असर की नमाज पढ़ी है? क्या पता, वो तो आप भी जानो। मैं तो दिन के वक्त कभी तुम्हारे गांव आया ही नहीं। आज ये मुर्शिद गिरामी के चमकते दमकते चेहरों को देखें, यही चेहरे हैं दोस्तों जो अपने चेहरों की चमक दमक से बांध करके लाखों लोगों को कल शफात मुस्तफ़ा का हकदार बनाएंगे। यही चेहरा जब बगदाद में चमका तो हजारों लोगों को ईमान की दौलत, तौबा की दौलत से नवाजा, और उनके घर में कोई चोर भी घुस गया तो निगाह डाल करके वली बना करके निकाल दिया। यही चेहरा जब अजमेर के अंदर चमका है तो 90 लाख लोगों को इधर से निकाल कर खुदा की बारगाह में झुकने का ढंग सिखा दिया। यही चेहरा जब कलियर में पहुंचा है, अल्लाह अल्लाह, निगाह जिधर जिधर दौड़ाई खुदा के जलाल की आग लगती हुई नजर आई। यही चेहरा जब मारहरा की धरती पर आया है तो वक्त के मुजद्दिद को झुकाकर अपने हाथों पे बैत किया है, और इतना चमकाया है कि पूरी दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। दोस्तों आज वही चेहरा आपकी निगाहों के सामने है, उसी सिलसिलतुल ज़हब की पूरा प्यारी कड़ी आपकी निगाहों के सामने है। लिहाजा आज इस प्यारे चेहरे को देखकर हम नियत करें इंशाअल्लाह नमाजें अदा करेंगे। तेज बोलो थोड़ा, नमाजें अदा भी करनी है और नमाजें सीखनी भी है ना। हाँ, हमें आती भी नहीं है, हमें ब्याह करने आते हैं, इलेक्शन करने आते हैं, रोजगार करना आता है, बिजनेस करना आता है, गिराकों से डील करनी आती है, सब करना आता है, लेकिन हमें नमाजें पढ़नी नहीं आती। अफसोस आज इस प्यारे चेहरे को देख करके याद करें इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे, नमाजें सीखेंगे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अपने आप को वाबिस्ता करेंगे, उलमाए अहले सुन्नत से जुड़ करके काम करेंगे। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अस्सलाम वालेकुम।